یہی اور میرے گلے میں تکلیف ہے. میں ابھی 2-3 جلسے کر کے آیا ہوں, رات سے سویا بھی نہیں. طبیعت بھی متاثر ہے. میں حکم کے مطابق یہاں حاضر ہو گیا. میں چند باتیں اپنی ماں بہنوں سے کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے, میں حالات حاضرہ کے اوپر جہاں بھی جاتا ہوں میرا اصول رہا ہے میں اسی کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. تقریر یا بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا اور میں اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ 10 جلسوں میں بھی جاؤں تو ایک ہی بات کہتا ہوں جس کو محسوس کرتا ہوں. بہرحال میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے دوستو, ایک شاعر کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم یہاں پر قرآن کریم کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں. قرآن کریم کی ایک ایسی روشنی یہاں پر ہے جس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. اس ادارے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم, اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سورج کی روشنی اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو سورج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا اپنا قصور ہے. قرآن کریم کی ان انوارات کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. حضرت مولانا حامد صاحب نے بڑے بڑے علماء آپ کے یہاں لا کر بٹھائے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں. ایک ناظم اچھا ہوتا ہے تو نظام اچھا چلتا ہے اور اس کی ابتدائی بتاتی ہے. کسی کے بچے بتا دیتے ہیں ان کی ماں کیسی ہوگی, اور کسی کے شاگرد بتا دیتے ہیں ان کے استاد کیسے ہوں گے, اور کسی کے مرید بتا دیتے ہیں ان کا پیر کیسا ہوگا, اور کسی کے طالب علم اور اسٹوڈنٹ بتا دیتے ہیں ان کا مدرسہ, ان کا اسکول کیسا ہوگا. بہرحال یہاں پر مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی ہستی, بہت بڑے عالم, اپنے وقت کے شیخ الحدیث, ایک ایسا شخص نہیں بلکہ شخصیت, ایک کوئی فرد نہیں بلکہ ایک جمعیت, ایک آدمی جو تنہا 10 لوگوں کا کام کرتا ہو, ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سلیمان صاحب ابھی یہاں آئے تھے اور 10-5 منٹ میں اپنی باتیں بتا کر چلیں گے. انہوں نے جھنجھانے کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور مجھے بھی چند باتیں یاد آئیں. جھنجھانے کے تعلق سے یہاں پر ایک ہستی آرام فرما ہے جن کو لوگ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. لوگوں, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ہستی جو یہاں پر آرام فرما ہے ان کی شخصیت اور ان کی تاریخ کیا ہے. مجھے ایک بزرگ نے بتایا, ایک کتاب میں نے پڑھا, اس میں جو واقعہ لکھا, حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کو تعلق معاملہ اس درجے کا حاصل تھا, اللہ سے ایسی محبت, ایسی دوستی کی تھی. میاں جی صرف اس لیے ان کو کہتے تھے کہ مسجد کے ایک صحن میں بیٹھ کر چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا سا یہ قاعدہ پڑھاتے تھے, اس لیے ان کو میاں جی کہتے تھے. ان کا تعلق اور ان کی ہستی آپ کو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھانہ بھون کی خانقاہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حضرت حافظ ضامن شہید شیخ محمد محدث تھانوی, یہ تینوں اکابر بیک وقت خانقاہ میں رہتے اور تینوں نے مشورہ کیا ہمیں کسی کو اپنا پیر بنانا ہوگا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتی ہے ہم ایک بزرگ کو اپنا پیر بنائیں گے, اور دونوں نے کہا ہم بھی اپنا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دیں گے کہ جس کو آپ اپنا ہاتھ تھمائیں گے. بلکہ اپنے الفاظوں میں, اس زمانے کے الفاظوں میں یوں کہا, حاجی جی جہاں مڑیں گے ہم بھی وہیں مڑیں گے. یہ الفاظ کتاب کے اندر لکھے. انہوں نے بزرگوں کی تلاش کی, ایک لسٹ بنائی اکابر کہاں کہاں ہے, اور وہ اس دور میں یہ افغانستان اور یہ پاکستان اور یہ برما اور بنگلہ دیش اور یہ انڈیا, ان میں کوئی سرحد نہیں تھی, یہ ایک ہی ملک تھا. اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں انہوں نے ملتان اور افغانستان تک کا سفر کیا. جس بزرگ کو دیکھتے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شکل پر نظر ڈال کر اندازہ لگا لیتے یہ آدمی کتنے پانی میں ہے اور اس کی شخصیت کیا ہے. حاجی صاحب نے کہا ہم ان کو اپنا پیر کیوں بنائیں, ہم کیوں ان کو اپنا پیر بنائیں, میں اس کو معیار کا نہیں پاتا. پھر دوسرے بزرگ
ان کے پاس گئے، پھر وہاں سے بھی واپس آئے، بہرحال 3 سال تک ٹھوکریں کھائیں، 3 سال تک خاک چھانی، اور ان کو اس شان کا کوئی بزرگ نہ ملا، نسبت میں اپنے آپ کو اونچا پایا، واپس آ گئے۔ لیکن 3 سال کے بعد مشقت اٹھانے کے بعد ایک بزرگ خواب میں آئے، حاجی صاحب کو فرمایا، ارے پگلو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت حاجی صاحب بیدار ہوئے اور ساتھیوں سے کہا، کوئی ہے جو ہم سے چھوٹ گیا اور ہم کو بلاتا ہے، ہم اس کی تلاش میں 3 سال تک پھر پھرے، 6 سال کا مجاہدہ اور مشقت کی، لیکن بزرگوں کا جہاں بھی پتہ چلتا وہاں جاتے، حاجی صاحب چہرہ دیکھتے بتاتے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے، یہ وہ شکل نہیں ہے، خواب میں جس نے ہمیں بلایا تھا میں اس کو پہچانتا ہوں اور میں اس کو پہچانوں گا۔ لیکن جب تلاش ختم ہوئی کہیں پتہ نہ چلا، ایک صاحب نے کہا، لوہاری کے اندر بھی ایک بزرگ رہتے ہیں میاں جی نور محمد، ان کا نام ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا چلو چل کر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جانے میں کیا حرج ہے۔ آپ وہاں گئے تو جا کر دیکھا میاں جی چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے مسجد میں جب قدم رکھا تو میاں جی نے ان کی طرف دیکھا، حاجی صاحب نے دیکھتی پہچان لیا، یہ وہ شکل ہے جو خواب میں ہمیں بلا رہی تھی۔ ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا، سامنے سے آواز آئی، ارے میاں خواب خیال کی باتوں بھی نہیں جایا کرتے، آ جاؤ چلے آؤ۔ اب تو یقین ہو گیا، اب تو مہر لگ گئی، یہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں خواب میں بلایا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو بیعت فرما لیا، اور شیخ محمد محدث تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بیعت فرما لیا۔ حافظ ضامن سے کہا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو اور سنو، باہر نکل جاؤ، اور خبردار آج کے بعد اگر یہاں قدم رکھا، ڈانٹ لگائی، ڈانٹ دیا حافظ ضامن شہید کو۔ آپ کے اندر غصہ بہت تھا، جلال بہت تھا، آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھے سڑک پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہاں سے تھوڑے بگا دے گا، یہ سڑک اس کی تھوڑے ہی۔ اب یہ تینوں بزرگ ایک ساتھ تھانہ بھون سے جاتے، یہ دونوں اندر جاتے، حافظ صاحب باہر بیٹھ جاتے، اندر نہ جاتے۔ مسلسل 60 دن ہو گئے، 2 مہینے ان دونوں کی تربیت ہوتی رہی، حافظ صاحب باہر بیٹھے رہے۔ 2 مہینے کے بعد میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، امداد اللہ حافظ ضامن کہاں ہے؟ باقی باہر بیٹھا ہوگا کہ اس کو بلاؤ۔ حاجی صاحب بلا کر لائے اور حافظ صاحب کو سامنے بٹھایا۔ اسی دوران ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت جی موت اور زندگی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا ہم آپ سے پہلے چلے جائیں یا ہم آپ سے پہلے چلے جائیں یا آپ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ اگر آپ ہم سے پہلے چلے جائیں ہم اپنا اصلاحی تعلق کس سے قائم کریں؟ میاں جی نے فرمایا، میں نے حافظ ضامن کو مکمل کر دیا۔ یہ لوگ حیران ہیں، تربیت ہماری ہوئی، تعلیم ہماری ہوئی، بیعت ہمیں کیا، اصلاح ہماری ہوئی، حافظ ضامن شہید کو مکمل کر دیا۔ یہ تینوں واپس آئے۔ ایک روز حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں تشریف لائے۔ سہدری میں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور چارپائی پر آ کر ایسے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے پیچھے کی ایسے پٹی پکڑی اور حسرت بھرے انداز میں آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حافظ صاحب سامنے بیٹھے، شیخ محمد محدث تھانوی سامنے بیٹھے، حاجی امداد اللہ نیچے بیٹھے سامنے چارپائی کے۔ اس وقت میاں جی نے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا میں حافظ ضامن سے کچھ کام لیتا، لیکن یہ تو قضا اور قدر کا فیصلہ کچھ اور ہو گیا۔ حاجی امداد اللہ سمجھ گئے، ان کی ہچکی بندھ گئی، چارپائی کا پایا پکڑ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ میاں جی نے حاجی صاحب کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور تھپتھپایا اور فرمایا کہ رویا نہیں کرتے، فقیر منع نہیں کرتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، تم میرے مزار پہ جھنجھانے آیا کرنا۔ آپ یہاں سے اٹھے اور سیدھے جھنجھانا تشریف لائے، آتے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ ہستی ہے۔ آپ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمت اللہ علیہ کی جو کشف ہے، جو کرامات ہے اور جس درجے کی ان کی شخصیت ہے، آپ اندازہ اس سے لگائیں ان
ایک مرید نے کہا تھا آپ مجھے اللہ کا دیدار کراؤ. میاں جی نے کہا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تمہاری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں, وہ پاور نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, تم اس کی تاب نہیں لا سکتے. مرید نے کہا تم ٹال رہے ہو, تم مجھے ٹال رہے ہو, کیا اللہ کو یہ پاور نہیں ہے جس کو وہ چاہے اپنا دیدار کرا سکتا ہے, تم مجھے بہکا رہے ہو. حاجی صاحب نے اس کو سمجھایا, وہ نہ سمجھا, اس کو منایا, وہ نہ مانا, ضد کی. میاں جی صاحب نے ایک لکڑی اٹھائی, زمین پر ایک دائرہ بنایا اور فرمایا اس دائرے کے اندر کھڑا ہو جا. اس پہ کھڑا کیا اور پھر فرمایا اپنی نظر میرے چہرے کے اوپر ڈال اور اس دائرے سے باہر مت جانا. نظر ڈالی تو میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کے اندر سے ایک روشنی نکلی جو اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور اس کی باڈی کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا اور اس کا جسم وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے, یہ کیا ہو گیا, کس کی مجال تھی جو وہاں پر لب گشائی کرتا یا جرأت کرتا. جانتے تھے حضرت کی شخصیت سے سب متاثر تھے. آج میاں جی دیکھتے رہے, جلال والا چہرہ آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی. لوگوں کی جانب دیکھا تو لوگوں کے چہرے سوال پوچھ رہے تھے, ہر شخص جاننا چاہتا تھا یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. میاں جی نے فرمایا اے لوگوں سنو, میں نے اس کو سمجھایا یہ سمجھا نہیں, میں نے اس کو منایا یہ مانا نہیں, اس نے ضد کی. میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا. 60 سال میں نور محمد نے جو اخذ کیا تھا, 60 سال میں جو نور محمد نے حاصل کیا تھا, 60 سال میں نور محمد نے جو پی لیا تھا وہ اس نے 60 لمحوں میں پی لیا. مرنا تو اس کو تھا ہی, یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا. میں رب اکبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں, رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. آج 60 سال ہو گئے, میں جب تک اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر لیتا نہ کھانا کھاتا ہوں اور نہ سوتا ہوں. وہی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء کرام, علماء کرام, حضرت قاری محمد الطاف صاحب, ماشاءاللہ بہت خوب کر صاحب, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو فرمایا وہی کھلاتے ہیں تو کھا لیتا ہوں, وہ پینے کو کہتے پی لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں سو جا تو سو جاتا ہوں. ایسا تعلق اللہ سے قائم کیا. بزرگ بتاتے ہیں لوہاری سے تھانہ بھون پیدل چل کر آتے, وہ درخت مظفر نگر روڈ پر ابھی چند سالوں پہلے ہی اس کا وجود ختم ہوا. میاں ریتی والی مسجد تھانہ بھون میں ایک ملا یعقوب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ضعیف ہو کر انتقال ہوا. میں نے بھی دیکھا, جنجانے کے کافی لوگوں نے دیکھا. وہ بتاتے ہیں وہ درخت میں نے بھی دیکھا. میاں جی جب درخت کے نیچے آتے اس کی شاخیں جمع ہوتی اور ان کے اوپر سایہ کر لیتی تھی. وہ درخت بھی احترام کرتا تھا. میاں جی نور محمد جھنجانوی کے مزار پر تم گئے ہوں گے, تم نے دیکھا ہوگا ان کے مزار کے اوپر ایک درخت ہے. میں نے دیکھا ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہے, احترام ہے, ادب ہے, محبت. اس کا پتا پتا بول رہا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر ان کے مزار پر پتھر کے اوپر لکھا اور فرمایا جس کو اللہ کا دیدار کرنا ہو وہ چلے جاؤ میرے شیخ کے روزے کا مزار کی زیارت کر لے. لوگوں کے قلم خاموش ہے, زبان خاموش ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. حاجی امداد اللہ ہمارے اکابر, ہمارے علماء دین, چاہے وہ دیوبند کا نیٹ ورک ہو اور چاہے وہ افغانستان اور مجاہدین کا ہو اور وہ تبلیغی جماعت ہو اور وہ کوئی سا بھی سسٹم ہو, کسی بھی نیٹ ورک کو آپ پکڑ لیجئے. دین کا نیٹ ورک جو پوری دنیا میں پھیل چکا, چاہے یورپی ممالک کے اندر, عالمی سطح پر خدا کی قسم اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے جس سے کفر لرزہ ہے, کفر خوف زدہ ہے, کفر کی حالات خراب ہے.
कुफ्र बौखला उठा है, हमलों से काम ना हुआ, अटैक से काम ना हुआ, मदरसों को दहशतगर्द कहा, उसका काम न चला, उलामा को कत्ल किया, काम न चला, उसने प्रोपेगेंडा किया। ये तोड़ फोड़ का निजाम चल रहा है सीरिया में, दमिश्क में, यमन में और इराक में, जो कुछ टूट फूट हो रही है, ये तबाही हो रही है, खुदा की कसम तकवीनी निजाम है। हालात इतनी जल्दी से पलटा खाने वाले हैं, देखना कोई शख्सियत नमूदार होने वाली है और कुफ्र को ज़ेरो ज़बर करेगी, कुफ्र को ये हिसाब चुकाना होगा। मासूम बच्चों का जिनको ये भी नहीं मालूम था कि दीन क्या होता है, मजहब क्या होता है, नफरतें क्या होती है, दुश्मनी क्या होती है, मासूम छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर गोद में दूध पी रहे थे, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उनको बारूद डालकर जिंदा जला दिया गया। क्या तुम्हें यकीन नहीं? मेरा ईमान है उनकी वो चीखें और मासूम बच्चों को मैं लहू रंग लाएगा। तुम देखना ये कुफरिस्तान जहाँ पर तुम बैठे हो, यहाँ पर मुसलमान को मारा गया, पिटाई हुई, यहाँ पर नहीं सारी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, कट रहा है, पिस रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं है। रब्बे अकबर की कसम इसी को शायर कहता है, इसी को शायर कहता है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की शौकत को सवाल आता है। तुमने देखा फ्रांस के अंदर मुट्ठी भर ईसाइयों पर किसी ने बम मार दिया, वहां पर 13 ईसाई मरे, सारी दुनिया के लोग मोमबत्ती लेकर बाजारों में आ गए। मुसलमानों ने कहा जुल्म हुआ, उलमा ने कहा जुल्म हुआ, एहतजाज हुए, सारी दुनिया में एहतजाज मनाया गया, सारी दुनिया हिल गई, सारी दुनिया लरज़ उठी, मीडिया भी रो उठी, मीडिया भी रो रही थी, लोग भी रो रहे थे, सारी दुनिया में हलचल मच गई। उसके बाद फिर क्या किया, उसका बदले में उसका रिएक्शन क्या हुआ? खुदा की कसम इन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। बम विस्फोट फ्रांस में हुआ था, रूस ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। सीरिया में वो बम मारा कि 2 लाख मुसलमानों को मकानों के साथ जमीन पर दफन कर दिया। यकीन नहीं आता, लोग सोचते होंगे ऐसे माइक पर बैठकर डायलॉग मार रहा है, नेट चलाने वाला कोई तालिब इल्म, कोई शख्स वहां पर होगा, उसने वहां पर उसकी वीडियो बनाई जो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। नेट पर जाना और यूट्यूब पर सर्च करना, वहां पर सिर्फ आप कुछ ना लिखना, सीरिया बम ब्लास्ट इतना लिखना या सीरिया अटैक, बस इतना लिख देना, वो सीरिया का बम आपके सामने आएगा, आपकी आंखें देखेंगी। खुदा की कसम एक बम ने जिस तरह 2 लाख बसने वाले शहर को जमीन से उठाया और पलट दिया, कोई नहीं बोला, जबानें कट गई, हाथ टूट गए, कलम टूट गए, हाथ शल हो गए, मीडिया अंधी और बेरी होगी। किसी ने आपको नहीं बताया उनका एक बच्चा मरता है, दुनिया में लर्जादारी होता है, हमारे लाखों बच्चे मरते हैं, कोई एहतिजाज नहीं करता। उनका लहू लहू हमारा लहू पानी, उनका खून खून हमारा खून पानी, उनकी इज्जत इज्जत हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी बेटियों की इज्जतों को तार तार कर दिया जाए, कोई नहीं बोलता। नहीं, ज़मीन पर ज़लज़ले बेसबब नहीं आते, तहे खाक बेताब कोई तड़पता होगा। अल्लाह का दीन भी तड़प रहा है, मुसल्ला के दीन के चाहने वाले, फैलाने वाले भी तड़प रहे हैं। उलमा अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने मैदानों में। मुसलमानों ने नफरत पैदा की, उलमा के खिलाफ नफरत पैदा की, कुफ्र के खिलाफ कोई नफरत नहीं। और यहूदियों ने कहा था उलमा अवाम के अंदर दीवार खड़ी कर दो, वो अपनी चाल में कामयाब हुआ। आज अवाम ने, मुसलमानों ने उलमाओं पर कीचड़ उछाला, उलमा पर ताने कसे, टोन कसे, हमला किया, मदरसे कायम हुए, कारोबार का अड्डा कह दिया, रोजगार का अड्डा कह दिया। मुसलमानों की जबान से हमने सुना, लो साहब एक दुकान और खुल गई। याद रखो, अपनी जबान को लगाम देना कि तुम्हें मालूम नहीं है। झिंझाने के अंदर सर्वे करो, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल्स हैं और कितने यहाँ पर ईसाइयों यहूदियों के अड्डे हैं, जहाँ पर ईसाइयत, यहूदियत, उनका कल्चर, उनकी तालीम, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन आज बच्चों के अंदर खोपड़ियों में कूट कूट कर भरा जा रहा है। मुसलमानों को कोई अफसोस नहीं, अफसोस हुआ तो इस बात का एक मदरसा और खुल गया। क्या जरूरत थी, एक मदरसा और खुल गया। नफरत पैदा हुई तो उलमा की तरफ से, रिश्ता टूटा तो कुरान मुकद्दस की तरफ से, हमारे घरों से
कंजरियों की गाने बजाना, तबला, पायल, ये आवाजें तो निकलती है, कुरान करीम के नगमे घरों से नहीं निकलते। नौजवान तू जान ले, हदीस शरीफ वाज़े हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल्लाह जब तू अपनी मखलूक से खुश रहता है, हम कैसे पता करें? आवाज आई थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इन लोगों से कह दो अगर आसमान से रहमत वाली बारिश जमीन पर गिरती है और फसलें लहरा उठती हैं तो वो जान ले उनका परवरदिगार उनसे खुश है। अगर बारिश बंद हो जाए तो वो जान ले उनका परवरदिगार, उनका अल्लाह उनसे राजी नहीं है। देखते नहीं हो, साल भर हो गया, बारिश गिरी है, फसलें तबाह हो गई, कुएं खुश्क हो गए, तालाब खुश्क हो गए, किसी झील के अंदर एक कतरा पानी हमें कोई दिखा सकता है? एक महाराष्ट्र के एक इलाके में लाखों परिंदों ने एक रात में दम तोड़ दिया, पानी का एक कतरा ना मिला, सिसक सिसक कर जानवर मर रहे हैं। वाटर लेवल कितने फुट नीचे चला गया, सूरज रोजाना शोले बरसा रहा है, बारिश नहीं होती, कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं। सिस्टम है, लाइट है, बटन दबाते ही पानी पानी मिल जाता है। तुम्हें मालूम नहीं ये सिस्टम पानी नहीं लाता, अल्लाह का निजाम पानी लाता है। बूंद बूंद से जहां लोग तरस रहे हैं वहां भी लाइट है, तड़प तड़प कर जहां जानवर और चौपाए दम तोड़ रहे हैं लाइट वहां भी है। याद रखो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग इकट्ठे होकर आए थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, बागी भी थे। ए मूसा बारिश नहीं होती, खुदाओं से बारिश मांगी, इबादत की, ऐसा लगता है हमारे माबूद के हाथ में बारिश नहीं है। ए मूसा तू कहता है मेरा खुदा सच्चा है, अगर सच्चा है तो फिर बारिश की दरखास्त कर। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को जंगल में लेकर गए। यहाँ से एक बात ये भी निकली, जंगल में क्यों गए, वहां दुआ क्यों नहीं की? इसलिए जहां पर आबादी होती है वहां पर क्राइम होता है, वहां पर ज़िना होता है, वहां पर जुर्म होता है, वहां पर शराब पी जाती है, वहां पर दूसरे की बहू बेटी को तका जाता है, वहां पर नौजवान ज़िना के लिए राह हमवार करता है, वहां पर नौजवान कानों में लीड लगाकर मौसीकी के साथ उसका जिस्म धड़कता है। अल्लाह के कानून पर छुरी चलती है, अल्लाह के कानून पर कुल्हाड़ी चलती है, वहां पर दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में गए और कहा कि लोगों फेरो, आसमान की तरफ मुंह उठाया, इलाही मैं भी जानता हूँ ये मुजरिम है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये बागी है, आपको खुदा नहीं माना, मुझे पैगंबर नहीं माना, लेकिन इन्होंने एक बात कही है जो बड़ी अजीब है, मेरे दिल को छू गई, मेरे दिल पर हथौड़ा बनकर गिरी है। इलाही इन्होंने कहा है ऐ मूसा हमारे खुदाओं के हाथ में बारिश नहीं है, ऐसा लगता है। अगर तेरे खुदा के हाथ में बारिश है तो तू बारिश करा मेरे कहने से। अगर बारिश न हुई तो काफिर हंसेगा और यूं कहेगा मूसा के खुदा में और हमारे खुदा में कोई फर्क नहीं है। मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत रख ले, मेरे कहने से बारिश अता कर। आवाज आती है मेरे दोस्तों, क्या आवाज आती है उसको जरा गौर से सुनना मेरे नौजवानों। हमने बारिश को जो बंद किया है मूसा, इस बड़े मजमे में एक आदमी है जिसकी वजह से बारिश को बंद किया, सिर्फ एक आदमी। उसकी खवासत, उसकी गिलाजत तुम नहीं जानते हो। वो हमसे ऐलाने जंग कर रहा है 13 साल से हमारे साथ ऐलाने जंग कर रहा है। हमने पकड़ के नबत शरफ दिकलश दी। हमारी गिरफ्त में आने के बाद फिर कितने लोग लिपटते हैं उसमें तुमने देख लिया। इसलिए ए मूसा हम तुम्हारी फरियाद भी नहीं सुनेंगे जब तक वो आदमी मजमे में रहेगा। इलाही फिर क्या होगा? तुम मजमे से उस आदमी को बाहर निकाल दो, फिर दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआ सुनेंगे और बारिश हो जाएगी। ए अल्लाह मुझे क्या पता इतने बड़े मजमे में कौन है। यहाँ से एक बात ये भी निकली, एक आदमी की खबासत की वजह से भी अजाब नाजिल हो सकता है, एक आदमी की वजह से भी बारिश बंद हो सकती है। आवाज लगाओ, मेरी आवाज कैसे जाएगी इतने बड़े मजमे में? अरे तुम लगाओ तो सही, पहुंचा हम देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई। कौन है वो बदबख्त, जालिम, मनहूस, बदतमीज, नालायक, जालिम, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया कि अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, पूरा इलाका तबाही के दाने पर खड़ा हो गया।
वो मजमे से बाहर निकल जाए, हम दुआ मांगेंगे, हमारी दुआ कबूल होगी, और उसकी नहुसत की वजह से हमारी दुआ को रद्द कर दिया गया। वो आवाज उसके कान में पहुंची। अब वो सोचने लगा, अच्छा मैं हूं आदमी, मेरी वजह से बारिश बंद हुई। अगर तुम मजमे से बाहर निकला, आज पूरा इलाका, तमाम कबीले, खानदान, कुनबे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, आज तू जलील हो जाएगा। लोग देखेंगे ये है वो बदतमीज नालायक मरदूद शैतान जिसकी वजह से बारिश को बंद कर दिया गया। लोग मुझे जलील समझेंगे, हकीर समझेंगे, नफरत करेंगे, करीब कोई नहीं बैठने देगा, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। उसने दिली दिल में एक बात कही, जबान से भी नहीं कही ताकि पड़ोसी सुन ना ले, दिली दिल में कही, ऐ मूसा के खुदा, वो मुजरिम मैं हूँ, लेकिन एक बात तो बता, जब आज तक 13 सालों से तूने मेरे जुर्म को बर्दाश्त किया और मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला, जलील न किया, रुस्वा न किया, आज और बचा ले इस रुसवाई से, इस जिल्लत से मैं जलील हो जाऊंगा। तौबा करता हूँ, वादा करता हूँ, अज़्म करता हूँ, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, आज और बचा ले। बस उसने दिल में ये बात कही, काला बादल आसमान पर आया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जंगल सैराब हो गए, लोग घरों को चले। मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, माजरा क्या है। अभी तो अल्लाह ने फरमाया मजमे से जब तक वो बाहर नहीं जाएगा ना दुआ कबूल होगी और ना बारिश होगी। मैंने देखा कोई मजमे से न गया, बारिश हो भी गई, आवाज आई, ऐ मूसा, ऐ पैगंबर, तुम क्या सोचते हो? जो तुम सोचते हो वो हम जानते हैं, हम दिलों में और दिमाग में जो चल रहा है उसको भी जानते हैं, हम दिल में चलने वाली बात को भी जान लेते हैं। हम नफ्स हस्ती हमारे नाम से धड़क रही है, हमारी साथ मुकल्लिबुल कुलूब है, उसने दिल में अपने कल्ब के अंदर हमसे माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इलाही वो बात तो ठीक है, लेकिन उस जालिम को देखना चाहता हूँ, उसका मुझे दिखाओ चेहरा, वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया वो अभी यहाँ पर खड़ा है, लेकिन हम उसको, जब हमारा उसके ऊपर गुस्सा था, इताअत था, हमने उस वक्त उसको जलील न किया, रुसवा न किया। अब तो उसने तौबा मांग ली, माफी मांग ली, हमने माफ कर दिया। अब माफ करने वाले को हम दोस्त बना लेते हैं और वो हमारा दोस्त बन गया, हम उसको कैसे रुसवा कर सकते हैं? नहीं करेंगे, आपको भी नहीं बताएंगे। ऐ पैगंबर, आप नबी हैं, लेकिन वो हमारा दोस्त है, अब हमने उससे दोस्त बना लिया। याद रखो, जो बंदा सच्चे दिल से, तहे दिल से, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे, आइंदा न करने का आज़्म करे, अल्लाह ताला उसको दोस्त बना लेता है, हम उसको जलील नहीं करेंगे। देखा अल्लाह का बंदे का रिश्ता, देखा अल्लाह का बंदे का कनेक्शन, इस कनेक्शन को पहचानो, इस रिश्ते को समझो। ऐसे जालिम आदमी को तौबा करने से अल्लाह ने दोस्त बनाया। तुम तौबा करोगे झूठ से, शराब से, जिना से, जुए से, सट्टे से, जिना से, मौसीकी से, गाने बजाने से, नाफरमानियों से, फजर की अजान सुनकर मीठी मीठी गहरी नींद सोने से, अल्लाह के कानून पर, अल्लाह के रसूल पर, उनके तरीकों पर, उनकी सुन्नतों पर छुरी चलाने से अगर हम तौबा करेंगे, अल्लाह हमें दोस्त नहीं बनाएगा। ए दोस्तों, लौटो, वापस लौटो। तकरीर सुनने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तौबा का आज़्म करो, वादा करो और ये आज़्म करो, हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर हम 3-4 घंटे सुने, चाहे हम मोबाइल में सुने, चाहे माइक पर सुने, चाहे हम डाइट पर सुने, हमने बदलने का इरादा न किया तो फिर उस तकरीर का कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलो, सोच बदलने से कुदरत अपना फैसला बदल देगी। अगर तुम तस्बीह पढ़ो, सजदा करो, जिक्र करो, तिलावत करो, सोच न बदली, सोच के अंदर हमारी गंदगी भरी रही, अल्लाह अपना फैसला नहीं पलट सकता। सोच को पलटने से, ज़हनियत को पलटने से अपनी सोच बदलो और अज़्म करो, वादा करो, इंशाअल्लाह हम सच्ची तौबा करेंगे। और इस मदरसे को, ये जो पौधा लगाया गया है, मौलाना हामिद साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस माना कर फर्द पढ़ता है, फर्द बनता है, औरत पढ़ती है, ज़माना बनता है, घर बनता है। मौलाना कासिम नानोती, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना
अशरफ अली थानवी, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, इनकी बचपन तक जिंदगी पढ़ो, हालात पढ़ो, वाक़यात पढ़ो। खुदा की कसम इनको इस स्टेज पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ा दखल इनकी माँ का है, इनकी माँ का। किताबों का होता किताब तो आज भी वही है, कुरान करीम का होता कुरान तो आज भी वही है, इल्म हदीस का होता इल्म हदीस तो वही है, पढ़ाने का तरीका वही है। ना कुरान बदला, ना हदीस बदला, ना तरीका बदला, ना सिस्टम बदला। मदरसे थे कच्चे तो पक्के हो गए, तालीम बढ़ गई, इल्म आसान हो गया, कंप्यूटर आ गया, लेकिन उलमा बनते हैं, हाफिज बनते हैं, लाखों बनते हैं। अशरफ अली नहीं बनता, रशीद अहमद नहीं बनता, कासिम जैसा नहीं बनता, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। हमें इन मुल्लाओं की जरूरत नहीं, हमें अफराद चाहिए। अफराद पैदा करो। अफराद पैदा तब होंगे जब तुम इस फिक्र में लेकर सर जोड़कर बैठोगे। अपने कीमती बच्चे मदरसे को दो, अपना कीमती पैसा मदरसे को दो। इस दाम के साथ माँ की गोद मदरसे की पहली सीढ़ी है। और जिन माओं ने अपने बच्चों को सूरह रहमान, सूरह यासीन की लोरी के साथ बावजूद होकर अपनी छातियों से दूध पिलाया था, उन्हीं माओं की गोद में और उन्हीं माओं की गोद में पलने वाले बच्चे अशरफ अली थानवी बने, रशीद अहमद गंगोई बने। आज मेरी माँ बहनें टेलीविजन की स्क्रीन पर फौज प्रोग्राम देख रही होती हैं, अपनी छाती से बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, नापाक हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर फौज प्रोग्राम देख रही हैं, आंखों के रास्ते अख्ज़ कर रही हैं, कानों के रास्ते अख्ज़ कर रही हैं, दूध के जरिए छाती के रास्ते बच्चों के अंदर मुंतकिल हो गया। मौलाना मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया, मेरी बेटी नाफरमान है, गुस्ताख है, जुर्म हमारा है, मुजरिम हम हैं, हमने उसकी बुनियाद ऐसी सड़क पर डाली, गाड़ी खड्डे में चली गई, अड्डे में न गई, बस्ती के उस गड्ढे में गिर चुकी जहां से निकलना मुश्किल नजर आता है। कोई नौजवान है जो पूछ सकता है, ऐ बहन तुझे इतने बड़े मोबाइल की क्या जरूरत? कोई बाप है जो पूछ सकता है, ऐ बेटी तुझे मोबाइल की क्या जरूरत? हमने वाला वो असबाब जो यहूदियों ने हमारे घरों तक पहुंचाए थे, हमारे घरों में हमारी बेटियों के पास अगर मोबाइल है, बड़े बड़े स्क्रीन वाले या छोटे, तो फिर हमने तबाही का सामान घरों में पहुंचाया है। उन घरों की इज्जत तार तार हो, या फिर उन घरों में आग लगे, या फिर उन घरों को मिसमार किया जाए, या फिर उन घरों की आबरू को आग लग जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, कोई नहीं बचा सकता। लौटो, वापस लौटो और ये आज़्म करो, हम अपनी बच्चियों को हम बड़ी फिक्र के साथ कुरान करीम की तालीम देंगे। खुदा की कसम कल वो बेटियां माँ बनकर हमारे घरों में आएंगी तो जन्नत उनके कदमों में सिमट आएगी, बेटी बनकर आगोश में आएगी, रहमत सिमट कर तुम्हारे दामन में आएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जिस घर में बेटा आया अल्लाह ने उसके रूह से फरमाया, चला जा दुनिया में अपने बाप की मदद कर। जिस घर में बेटी आई अल्लाह ने फरमाया, तू चली जा, तेरे बाप की मैं मदद करूंगा। देखा बेटी का आना अल्लाह की कैसी बड़ी रहमत है। जिस घर में बेटा हुआ उस घर में लड्डू बटे, और जिस घर में बेटी हुई बताया भी नहीं कि पैदाइश कब हुई। मेरे दोस्तों कितना अफसोस की बात है, कुदरत के फैसले पर नाराजगी, कुदरत की अता पर नाराजगी। अल्लाह ये तुझे नहीं देनी चाहिए थी, अगर देनी थी कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। बड़ा जुर्म किया, बेटे के आने पर खुशियां मनाई, बेटों को बाप के सर पर जूते मारते हुए हमने देखा, बाप को खून के लहू के आंसू रोते हुए हमने देखा। मुझे याद नहीं पड़ता किसी बाप ने शिकायत की हो कि मेरी बेटी ने मुझे मारा है, मेरी बेटी ने मुझ पर जुल्म किया है, कभी नहीं। मेरे दोस्तों बेटी की शादी की शान शौकत के साथ की, हमने जहर दिया, ढंडोरा पिटवाया, मस्जिद में ऐलान किया, आओ चौधरी साहब की बेटी की शादी है, जहर देख लो। लोग देखने आए, बैठकों में चर्चा हो गया, वाह 2 व्हीलर दिया, 4 व्हीलर दिया, सोफा दिया, जहेज दिया, आला किस्म का सामान दिया, लेकिन तुझे मालूम नहीं है तुझे मालूम नहीं है तेरी बेटी का जहेज देखने
चौधरियों की बेटियों के साथ मजदूर की वो बेटी भी आई थी जिसके घर में फाका था। उसका बाप घर से चला था, डब्बा लेकर बेटी मजदूरी पे जा रहा हूँ, काम मिलेगा घर से खा, मैं उधर से खाना लेकर आऊंगा, तू गम न कर। मजदूरों के टोले में शहर के चौराहे पर जाकर बैठ गया। गरीब मजदूर को कमजोर समझकर किसी ने न बुलाया। शाम तक इंतजार किया। मायूस गरीब बाप खाली थैला लिए हुए वापस लौट रहा है। बेटी दरवाजे पर इंतजार कर रही है, डब्बा कुछ खाने के लिए लाएगा। खाली डब्बा घर लेकर पहुंचा, पानी पिया और फाके के साथ गैरतमंद आदमी अपनी गुर्बत का इजहार नहीं किया करता। वो नहीं बताता हमारे घर में फाका है, घुट घुट कर मर जाना पसंद करता है। तुझे मालूम नहीं है तेरा चेहरे देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई थी, और उस बेटी ने वो सामान जब देखा तेरी बेटी का, उसके दिल पर जो हथौड़ा पड़ा, उसके दिल पर जो छुरी चली, उसके दिल पर जो कचोके लगे, खुदा की कसम अर्श हिला होगा। और तुझे मालूम नहीं है, तूने खबर सुनी कि तेरी बेटी की डोली उठी, बारात रुखसत हुई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और वो तो दुल्हन बनने से पहले, वो सुहागन बनने से पहले उसका सुहाग उजड़ गया, और वो तो बेवा हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए कहते हैं कि ज़मीन पर ज़लज़ले बेसबब नहीं आते, तहे खाक बेदार कोई तड़पता होगा। हंसकर न देखिए मेरे हाले तबाह को, तस्वीर हूँ मैं अपने नशेबो फराज की। 50,000 की गड्डी दीवार के ऊपर को रात के अंधेरे में किसी जरूरतमंद के घर में फेंक आना बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। पहले जमाने में मिलता है कि अशरफियां सोने की थैली भरी हुई अंधेरे में गरीब के सहन में फेंक दी थी। आज कोई 50,000 की गड्डी जरूरतमंद के घर में अंधेरे में रात को फेंक कर आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। स्टेज पर पैसा लुटाना बड़ा आसान है, चौपालों में लोगों को बीच में नाम कमाने के लिए 10 लाख की गड्डी, 10 लाख का चेक देना बड़ा आसान है। किसी गरीब मुफलिस तंगदस्त परेशान हाल आदमी को छिपकर उसकी मदद कर देना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, दीन को सुनो कम, समझो ज्यादा। दीन को पढ़ो कम, समझो ज्यादा। दीन को समझने की जरूरत है। ईसाइयों ने अपना दीन अपनी माइंड के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया और उसमें ढाल लिया। तुम ऐसा ना करो, दीन को अपनी तरफ मत खींचो, दीन की तरफ खींचो। दीन को अपने अंदर मत समेटो, दीन के अंदर सिमट जाओ। दीन को अपने अंदर मत लपेटो, दीन के साथ साथ लिपट जाओ। वो हमसे मुतालबा कर रहा है, जो हमें दुनिया में लेकर आया है, हमसे मुतालबा कर रहा है। ये कोई बात हुई? नमाज जब चाहे पढ़ ली, जब चाहे छोड़ दी, पैंट शर्ट पहन ली, इस्लामी लिबास को ठोकर मार दी, दाढ़ी पर उतारा चला दिया, पढ़कर सो गया, गाने सुन लिए, पिक्चर देख ली, टीवी देख ली, कुरान शरीफ देख लिया। अल्लाह ने फरमाया, हबीब इन लोगों से कह दो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी चलेगी, हमारे अलावा यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी। दज्जालों की, फिरौनों की, शद्दादों की, शैतान की, बड़े बड़े जालिमों की, जिनको अल्लाह ने ज़ेरो ज़बर कर दिया, उनकी नहीं चली, आपकी कैसे चलेगी? अपनी ना चलाओ, अपनी ना चलाओ। इस मदरसे की तुम मदद नहीं कर सकते ना, इसकी मदद नहीं कर सकते ना, तो बस इतना करना, जब यहाँ से गुजर हो, मोहब्बत की नजर डालते हुए इनकी दीवारों से गुजर जाना, नफा होगा। नफरत की नजर इन दीवारों पर पड़ेगी, तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी जबानों को लगाम दो, इनकी मदद करो। मदद नहीं कर सकते, अपने बच्चे दो, बच्चे नहीं दे सकते, इनके लिए दुआ करो। दुआ नहीं कर सकते, मुखालफत न करो। ये अल्लाह के रसूल के घर है, इसमें काम करने वाले उलमा अपने अपने मैदानों में काम कर रहे हैं। कुफ्र खौफज़दा तुम्हारी वजह से नहीं, इन्हीं मौलवियों की वजह से है, इन्हीं दाढ़ियों की वजह से है, उनकी टोपियों की वजह से है। तुम अगर सिर्फ इनका टाइटल अपना लो, हर मुसलमान का बच्चा टोपी दाढ़ी रख ले, खुदा की कसम इनके कलेजे फट जाएंगे, ये मर जाएंगे। हम इसलिए पीड़ित हैं, हमने अपने आप को छिपाया है। मेरे दोस्तों, हमने देखा हमारी दिल्ली शामली से चलने वाली ट्रेनों में एक आध कोई दाढ़ी वाला फंसा, उनके साथ बदतमीजियां हुई, उन पर अटैक हुआ, इसलिए उनको तनहा जाना। काश तुम सब टोपी ओढ़ कर बैठते,
ट्रेन मुसलमानों से भरी हुई नजर आती, कोई बदतमीज ऐसी गुस्ताखी ना करता। मेरे दोस्तों, एक जगह हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए और हमने जुमे की नमाज के लिए तलाश की मस्जिद। हम पूछते रहे काश कोई टोपी वाला मिले। हम उससे पूछे जामा मस्जिद कहाँ है, कोई ना मिला। 1 किलोमीटर चलने के बाद मस्जिद मिली, नमाज पढ़ी, लोगों से पूछा, हमें बड़ा अफसोस हुआ जब बताया कि मौलाना जहाँ से तुम चल कर आ रहे हो यहाँ तक